Hello everyone. So this is Dr. Nayantara. Today we will discuss about the eukaryotic transcription. So in earlier videos we have discussed about transcription and prokaryotic transcription. Now in the first slide we will focus on the difference between the prokaryotic and eukaryotic gene expression. I think now all of you know that what is the gene expression. Okay, so if we talk about the difference between the prokaryotic and eukaryotic gene expression, so overall process of gene expression is more complex in eukaryotes as compared to the prokaryotes. This is because the eukaryotic cell structure is more complex in comparison to the prokaryotic cell structure. Now, how eukaryotic cell is more complex? All of you know that eukaryotic cell has number of compartments in it, while there is no compartmentalization in prokaryotes. Here compartment means there will be a nucleus. Within the nuclear membrane there will be number of organelles like mitochondria, Golgi complex, endoplasmic reticulum. Okay, so due to this compartmentalization in eukaryotes, the overall process of gene expression is more complex. So if we talk about the transcription process, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में बेसिकली क्या रहता है, आरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए. तो हेयर इन प्रोकैरियोट्स जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही प्रोसेस हैं जो कि पार्ट हैं जीन एक्सप्रेशन का, बोथ प्रोसेस अकर इन द साइटोप्लाज्म because there is no nucleus in the prokaryotic cell. But if we talk about the eukaryotic cell, तो यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है, जो आरएनए सिंथेसिस की प्रोसेस है, इट ऑलवेज टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस and that particular RNA is modified inside the nucleus. Newly synthesized RNA is modified inside the nucleus, and finally when it is modified properly, then this RNA, modified RNA, come into the cytoplasm, and in the cytoplasm translation process occur. So in prokaryotes, transcription and translation both process take place in the cytoplasm, while in the eukaryotes, the transcription process will take place in the nucleus, while the translation process will take place in the cytoplasm. The second difference between prokaryotic and eukaryotic gene expression is the type of RNA polymerases. In prokaryotic transcription, earlier we discussed that there is only one type of RNA polymerase that is used in the transcription process, but this is not the case in the eukaryotic transcription. Eukaryotes have three different type of RNA polymerase, whom we name RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3. तो इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. नाउ द थर्ड डिफरेंस इज टाइप ऑफ mRNA. टाइप ऑफ mRNA मीन्स कि प्रोकैरियोटिक mRNA जो है वो हमेशा पॉलीसिस्टोनिक होता है. पॉलीसिस्टोनिक का मतलब है कि जो mRNA बनेगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, इट विल कोड फॉर मोर देन वन प्रोटीन्स. Cystone means segment of the DNA that code for a protein. So polysystonic means it code for more than one protein. One mRNA molecule code for more than one protein. While in eukaryote it is always monosystonic, means mRNA जो बनेगा eukaryotes में, it always code for only one protein molecule. एंड द थर्ड डिफरेंस अर्लियर हमने डिस्कस किया है कि जैसे ही आपका आरएनए सिंथेसाइज होता है एमआरएनए, तो उसमें मॉडिफिकेशन होती है विद इन द न्यूक्लियस बिफोर इट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म फॉर द ट्रांसलेशन प्रोसेस. तो यहाँ ये जो मॉडिफिकेशन की प्रोसेस है, इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल ओनली. तो यहाँ क्या मॉडिफिकेशंस रहती हैं, बेसिकली कैप एडिशन होता है 5' एंड पे, 3' एंड पे एमआरएनए के टेल एडिशन होता है, एंड स्प्लाइसिंग मीन्स इंट्रॉन्स का जो नॉन कोडिंग सिक्वेंसेस होते हैं, इंट्रॉन्स, उनका रिमूवल होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये शो किया है इन्होंने कि कैसे प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन वेरी करता है फ्रॉम द यूकैरियोटिक. In prokaryotic cell, that is on the left hand side, you can see there is no separate nucleus. All the process, that is transcription, mRNA synthesis and protein synthesis, are taking place within the cytoplasm.
फर्स्ट थिंग। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, बिकॉज देयर इज नो डिफ्रेंशिएशन इन द लोकेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, तो यहाँ पे जैसे ही आपका एमआरएनए का 5' एंड सिंथेसाइज हो जाता है, वैसे ही ट्रांसलेशन प्रोसेस भी साइड बाय साइड शुरू हो जाती है 5' एंड ऑफ एमआरएनए पे। तो प्रोटीन्स बनना आपकी शुरू हो जाती है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यहाँ साथ साथ चलती है, बट इट इज़ नॉट द केस इन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोट में न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगी, प्री एमआरएनए बनेगा, प्री एमआरएनए में मॉडिफिकेशंस होंगी, एडिशन ऑफ कैप, एडिशन ऑफ टेल, स्प्लाइसिंग, तो मैच्योर एमआरएनए बोलते हैं हम उसको। मॉडिफिकेशन के बाद जो एमआरएनए हमारे पास आएगा, फाइनली दिस एमआरएनए मॉलिक्यूल विल कम इनटू द साइटोप्लाज्म एंड ट्रांसलेशन विल टेक प्लेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। तो अर्लियर मैंने बताया आप लोगों को कि देयर आर 3 टाइप ऑफ यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेजेस दैट टेक पार्ट इन द यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो उनको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। अगर हम उनकी लोकेशन की बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है, while other 2 RNA polymerases are present in the nucleus. And if we talk about the genes which they transcribe, तो जो आपका RNA polymerase 1 है, it is present in nucleolus, and I think all of you know that nucleolus region is responsible for the synthesis of rRNA. तो यहाँ ये जो पर्टिकुलर RNA polymerase है, it will transcribe the rRNA genes, while your RNA एक्सेप्ट 5s rRNA जीन को छोड़ के बाकी जितने भी rRNA जीन्स हैं उनको कौन ट्रांसक्राइब की करेगा? RNA polymerase 1. एंड इफ यू टॉक अबाउट द RNA polymerase 2, तो जो आपका RNA polymerase 2 है, इट ऑलवेज ट्रांसक्राइब द mRNA जीन्स जिनको हम हेट्रोन्यूक्लियर RNA या न्यूक्लियर प्री mRNA जीन्स भी बोलते हैं। एंड द third type of RNA polymerase will transcribe for the tRNA genes and 5s rRNA genes. So this is all about their location and their products. And third difference जो है इसमें वो है sensitivity to alpha amonitin. Alpha amonitin basically क्या है? It is a fungal toxin. तो अल्फा अमोनिटिन के लिए इनकी सेंसिटिविटी के बेस पे हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया है। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है, इसके ऊपर अल्फा अमोनिटिन का कोई इफेक्ट नहीं रहता, इट इज़ नॉट सेंसिटिव, वो फंक्शन करेगा इसकी प्रेजेंस में भी अच्छे से। और जो आपका आरएनए पॉलीमरेज 2 है, इट इज़ सेंसिटिव टू अल्फा अमोनिटिन इवन एट द लो कंसंट्रेशन। अगर लो कंसंट्रेशन में भी अल्फा अमोनिटिन प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, तो आपका आरएनए पॉलीमरेज 2 फंक्शन नहीं करेगा। एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो इंटरमीडिएट सेंसिटिविटी शो करता है। इंटरमीडिएट सेंसिटिविटी का मतलब क्या रहता है कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो लो कंसंट्रेशन पे उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा अल्फा मोनिटिन का उसकी एक्टिविटी पे, बट इफ इट इज प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन तो आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो होगा। सो दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज शोइंग अबाउट द genes that are transcribed by three different RNA polymerases. So RNA polymerase 1 is for rRNA genes excluding the 5s rRNA genes. So ये rRNA molecules जो हैं वो synthesize होंगे rRNA genes से, और rRNA molecules जो हैं finally they will combine with some protein molecules and they form the ribosomes. तो राइबोसोम्स बेसिकली किससे बनते हैं? rRNA molecules plus प्रोटीन से, and they assist in the translation. Now come to the RNA polymerase 2. तो RNA polymerase 2 जो है it will code for mRNA genes, and mRNA molecules are the only RNA molecules that undergo translation to synthesize the proteins. And RNA polymerase 3 will code for tRNA genes. और tRNA का जो फंक्शन है, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट tRNA मीन्स ट्रांसफर RNA। तो ये अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है ट्रांसलेशन प्रोसेस में। जब प्रोटीन सिंथेसाइज होती है आरएनए मॉलिक्यूल से, mRNA मॉलिक्यूल से, तो इट विल ब्रिंग द अमाइनो एसिड्स टू द ट्रांसलेशन साइट। So if we talk about the steps in eukaryotic transcription, तो earlier we discussed that the overall transcription process or gene expression is quite complex in eukaryotes as compared to prokaryotes. So here there are two more steps. One is pre-initiation step
and one extra step is last step, that is the processing of RNA, that is including in the last termination step. So pre-initiation, initiation, followed by elongation, termination, and itself include the modification of rRNA molecule. So first of all, let us discuss about the first step, that is pre-initiation. सो प्रोकैरियोट्स में बेसिकली क्या था कि प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज में सिग्मा फैक्टर रहता था, एंड दैट सिग्मा फैक्टर इटसेल्फ वाज एबल टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन. बट हियर इज नॉट द केस. आरएनए पॉलीमरेज के पास एबिलिटी नहीं होती कि वो इनिशिएट कर सके ट्रांसक्रिप्शन को इटसेल्फ. तो इसको कुछ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैन इनिशिएट, एंड दैट पर्टिकुलर फैक्टर्स जो है वो प्रोटीनियशियस होते हैं नेचर में, तो उनको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. ठीक है, तो ये क्या करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स? दीज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड टू द प्रमोटर रीजन इन द डीएनए एंड दे फॉर्म अप्रोप्रिएट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. और उस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से आके आपका आरएनए पॉलीमरेज आता है एंड इट बाइंड एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन. ओके, समझ में आया? तो वहाँ प्रोकैरियोट्स के केस में सिग्मा फैक्टर इनिशिएट करता है. हेयर आरएनए पॉलीमरेज इटसेल्फ नॉट कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग द ट्रांसक्रिप्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड. इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है? प्रमोटर रीजन से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिनको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बोलते हैं, दे विल कम एंड बाइंड एंड दे विल फॉर्म द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. और जो ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, इससे आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा. सो हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेजेस हैं, और तीनों टाइप के आरएनए पॉलीमरेजेस के लिए अलग अलग तरह के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स रहते हैं. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्रमोटर रीजन से बाइंड करते हैं, तो दे ऑलवेज बाइंड अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट. इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रमोटर रीजन, तो उसमें कुछ कंजर्व सीक्वेंसेस रहेंगे, जैसे प्रोकैरियोट में भी थे कुछ कंजर्व सीक्वेंसेस जिनको हम बोल रहे थे प्रिबनोव बॉक्स और रिकॉग्निशन सीक्वेंस. तो हेयर सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी कुछ कंजर्व सीक्वेंसेस रहते हैं. जो नियरेस्ट कंजर्व सीक्वेंस है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट के, उसको हम बोलते हैं टाटा बॉक्स. और टाटा बॉक्स की लोकेशन जो है वो 90 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट रहती है. फर्स्ट थिंग लोकेशन, एंड सेकंड थिंग इसको टाटा बॉक्स बोला क्यों जाता है? बिकॉज इट हैज टाटा सीक्वेंस, दैट इज TTA-AA. तो ये सीक्वेंस आप लोगों को याद रहना चाहिए बिकॉज इट इज मैनी टाइम आस्क्ड इन एग्जाम्स. And second important conserved sequence that is present in the RNA polymerase 2 promoter region is cat box. तो कैट बॉक्स की जो लोकेशन है वो -80 रहती है, और इसका सीक्वेंस जो है वो है GGCCAATCT. ओके, एंड द थर्ड वन एंड फोर्थ वन, 2 मोर सीक्वेंसेस आर देयर जिनको हम बोलते हैं GC बॉक्स, एंड जो एंड पे रहेगा दैट इज ऑक्टामर बॉक्स. जो GC बॉक्स है वो GC रिच रीजन है, और उसमें जो सीक्वेंस रहते हैं GGC, और ऑक्टामर बॉक्स में जो कंजर्व सीक्वेंस रहता है दैट इज ATTGCAT. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंजर्व सीक्वेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन द प्रमोटर रीजन. नाउ these conserved sequences can be seen in this particular diagram. This arrow is representing the transcription initiation site, and the conserved sequence that is present nearest to the transcription initiation site is Tata box. टाटा बॉक्स के बाद आपका अपस्ट्रीम प्रेजेंट रहता है कैट बॉक्स. कैट बॉक्स के बाद अपस्ट्रीम जो है वो GC बॉक्स, एंड फाइनली द ऑक्टामर. सो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता कैसे है? कौन कौन से आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो आते हैं और बाइंड करते हैं, किस सीरीज में करते हैं वो बाइंड, और कैसे वो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2 के लिए, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे. तो आरएनए पॉलीमरेज 2 के लिए जो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आता है जो बाइंड करता है प्रमोटर रीजन में, वो है TF2D. TF2D जो है फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो प्रमोटर रीजन में बाइंड करता है. और TF2D के पास स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं TBP, दैट इज टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स. और दूसरी जो प्रोटीन्स रहती हैं वो है TAF, दैट इज TBP एसोसिएटेड फैक्टर्स. तो ये इनका काम क्या रहता है? जो TBP है ये जाके पर्टिकुलरली टाटा बॉक्स में बाइंड करती है,
और टीबीपी को असिस्ट कौन करता है टाटा बॉक्स से के साथ बाइंडिंग करने में, वो है टीबीपी एसोसिएटेड फैक्टर, दैट इज टीएएफ। तो फाइनली जब आपका TF2D बाइंड कर जाएगा टाटा बॉक्स के साथ, तो उसके बाद TF2A ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आता है एंड देन TF2B आता है, और फाइनली हमारे पास इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। नाउ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया, तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज इनिशिएशन। प्री इनिशिएशन के बाद इनिशिएशन आएगा, दैट इज द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। तो जैसे ही इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आपका बन गया, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है सबसे पहले बाइंड करेगा एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर F के साथ, और फिर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर F और आरएनए पॉलीमरेज जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F और आरएनए पॉलीमरेज का जो कॉम्प्लेक्स बनता है, इट विल फाइनली ज्वाइन टू द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो 2F और आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स की बाइंडिंग के बाद कुछ और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो बाइंड करते हैं, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E के बाद 2H 2J, दीज आर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दैट बाइंड। ओके, सो लास्ट जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है 2J वो बाइंड करता है। तो इसमें जो आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ अनवाइंडिंग द डीएनए। तो जो लोकलाइज्ड आपका ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्मेशन है वो कौन करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2। तो आपका ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया, तो उसके बाद क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, वो सीक्वेंस को रीड करेगा, और सीक्वेंस को रीड करता हुआ वो आपकी न्यू आरएनए चेन जो है mRNA चेन को सिंथेसाइज करेगा। तो यहाँ जो है इनिशिएशन में एक पर्टिकुलर टर्म रहती है, दैट इज अबॉर्टिव इनिशिएशन। अबॉर्टिव इनिशिएशन में क्या होता है कि आपका शॉर्ट आरएनए चेन बनती रहेंगी और वो रिलीज होती रहेंगी आपके कॉम्प्लेक्स से, जो आपका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का डीएनए के साथ। तो ये तब तक चलता है, अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो ये जब तक अबॉर्टिव सिंथेसिस चलेगा, शॉर्ट चेन बनेगी रिलीज हो जाएगी, बनेगी रिलीज हो जाएगी, जब तक कि आपके फर्स्ट मोर देन 23 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो ना बन जाए। जैसे ही आपकी आरएनए चेन 23 न्यूक्लियोटाइड से ज़्यादा बन जाती है, तो उसके बाद आपका रिकम्बिनेशन फेज आ जाता है। रिकम्बिनेशन फेज मीन्स कि फुल चेन बनेगी फिर आपकी आरएनए की। और ये अबॉर्टिव सिंथेसिस प्रोकैरियोट्स में भी होता है। प्रोकैरियोट्स में जो इसकी लेंथ है, लिमिटेशन लेंथ है, वो 10 न्यूक्लियोटाइड्स की होती है। जब तक आपकी आरएनए चेन प्रोकैरियोट्स के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड तक की नहीं बनती, तब तक आपका 10 से नीचे रहेगी, तब तक आपकी वो 8 9 की जो आरएनए चेन है वो बनेगी और रिलीज होती रहेगी, और इसको हम बोलते हैं अबॉर्टिव इनिशिएशन और अबॉर्टिव सिंथेसिस। ओके, अब आपका इनिशिएशन स्टार्ट हो गया, तो सेकंड स्टेप क्या रहेगा, इलोंगेशन ऑफ आरएनए चेन। तो इलोंगेशन में क्या रहता है, इलोंगेशन में तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करेगा, वो रीड करेगा डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड को, और जो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं उनको उनके बीच में बॉन्ड सिंथेसाइज करेगा और आरएनए चेन बनाता जाएगा। तो इस आरएनए इलोंगेशन जब शुरू होता है, जब रिकम्बिनेशन फेज शुरू हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या रहता है, आपके सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिलीज हो जाते हैं एक्सेप्ट द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिमेन बाउंड इन द इलोंगेशन फेज। ओके, तो यहाँ क्या रहता है, जब आपका इलोंगेशन फेज शुरू होता है, तो आरएनए पॉलीमरेज 2 का जो कार्बोक्सिल टर्मिनल है उसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। एटीपी यहाँ यूज होता है, और एटीपी से फॉस्फेट रिलीज होके इसके कार्बोक्सी टर्मिनल पे बाइंड करता है एंड इट बिकेम फॉस्फोराइलेटेड, और ये फिर जो है फर्दर हेल्प करेगा। अब ड्यूरिंग इलोंगेशन प्रोसेस एक आपका एडिशनल स्टेप रहता है, मैंने बताया था मॉडिफिकेशन का। तो यहाँ पे जैसे ही 5' एंड जो है यूकैरियोटिक एमआरएनए का बन जाएगा और 30 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग चेन हो जाएगी आरएनए चेन जो है आपकी, तो 5' पे आपकी कैप ऐड हो जाती है, और वो कैप जो है वो उसकी कंपोजिशन क्या है, वो 7 मिथाइल ग्वानोसिन रेजिड्यू से बनी होती है। तो 7 मिथाइल ग्वानोसिन रेजिड्यू जो है उसके अंदर 5' to 5' ट्राइफॉस्फेट लिंकेज होती है और मिथाइल ग्रुप्स रहते हैं। So this is very important question, that which type of linkage is present in the 7 methyl guanosine residue. Okay, so you must remember that 5' to 5' triphosphate linkage is present.
नाउ कैप का फंक्शन क्या रहता है, 5' एंड पे जो हमने mRNA के कैप ऐड हुई है ड्यूरिंग द एलोंगेशन प्रोसेस, तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस तो होगा। तो उसका पर्पस जो है, एक तो ये रहता है कि ये प्रोटेक्ट करती है आरएनए चेन को फ्रॉम द डिग्रेडेशन बाय न्यूक्लियसिस। जो न्यूक्लियसिस एंजाइम है जो डिग्रेड कर सकते हैं आरएनए को, उनसे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एंड सेकंड फंक्शन इसका ये रहता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन में प्रोटीन फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे ट्रांसलेशन के दौरान, तो वो प्रोटीन फैक्टर्स जो हैं वो सबसे पहले इसी कैप को ही रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर वो आरएनए के साथ। नाउ द लास्ट स्टेप इन द यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इज द टर्मिनेशन ऑफ द आरएनए चेन। सो टर्मिनेशन जो है यूकैरियोट्स में, अगर हम बात करें तो इसमें जो टर्मिनेशन के लिए जो पर्टिकुलर फिनोमिना है, जो इन्वॉल्वमेंट जिसकी रहती है टर्मिनेशन में, वो है एंडोन्यूक्लियोलाइटिक क्लीवेज न्यूली सिंथेसाइज एमआरएनए चेन की। तो यहाँ पे क्या रहता है कि जैसे आपकी आरएनए चेन सिंथेसाइज हो रही है, तो जो आपका 3' एंड बनेगा एमआरएनए का, ट्रांसक्रिप्शन जो है उस 3' एंड से प्रोसीड कर जाती है उस पर्टिकुलर साइट से। इट विल प्रोसीड बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर साइट जो आपका 3' एंड बनेगा न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए चेन का। तो अब क्या होता है कि अब वो जो आपका 3' एंड बनना है, वहां पे आके जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो आएगा और उस 3' पे आके क्लीव कर देगा, और इस तरीके से आपका आरएनए चेन जो है वो बन जाएगा। अब जो हाँ क्लीवेज होती है 3' एंड पे, उसकी भी कंजर्व, वो भी एक पर्टिकुलर उसकी साइट जो है वो कंजर्व रहती है। वो बेसिकली एक हमारे पास इस पूरे चेन में कंजर्व सीक्वेंस रहता है डाउन स्ट्रीम 3' एंड से बाद में, जिसका जो कंजर्व सीक्वेंस है वो है AA U, तो उससे 11 to 30 न्यूक्लियोटाइड डाउन स्ट्रीम क्लीवेज होगी और आपके पास आरएनए चेन आ जाएगी। जैसे ही क्लीवेज हुई 3' एंड बन गया, तो नेक्स्ट स्टेप जो रहता है उसमें वो रहता है एडिशन ऑफ पॉली ए टेल। तो जो पॉली ए पॉलीमरेज है वो आएगा एंड इट विल ऐड द एडिनोसिन रेजिड्यूज एट द 3' एंड ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज चेन। और जो 3' जो एडिनोसिन रेजिड्यूज हैं उनका नंबर अराउंड 300 रहता है। तो जो आपकी टेल ऐड हुई है न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए चेन पे, उसका भी फंक्शन है। एक तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी आरएनए चेन को, एंड सेकंड जो उसका रोल, मेन रोल जो रहता है वो है ट्रांसपोर्ट में। जब आपका जो आरएनए है वो ट्रांसपोर्ट होता है न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसलेशन, तो ट्रांसपोर्ट में जो ये आपकी टेल है ये